This is mainly a heart failure session, like what we're going to talk about is the novel lipid lowering therapy in glycerin. So we've divided this talk into a few parts, or फिक्र न करें सबकी एक दो slide की, so we won't bore you hopefully. So first we'll need to talk about what this new therapy is. Secondly, probably what are the indications for this, or thirdly, the emerging data regarding why we should be considering it much earlier than we always do, or at least we have been doing so far, including the West. क्योंकि तो दिस इज जस्ट डेटा कि हम लोग जो लोगों को प्राइमरी या सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए we put them on statins. Depending on why we are putting them on statin, we decide whether they will be suitable for low or moderate intensity statin versus patients who have already had an event and who need to be on high intensity statin. So this is data published very recently. What it shows is कि जिन लोगों को आप moderate intensity statin देते हैं, जो median time is roughly where half the population stops taking that tablet, or we know कि 15 months के बाद उनमें से अक्सर टैबलेट नहीं ले रहे होते. We see this in our clinical practice all the time. वो आपको एक दफा दिखाने आता है कि जी मेरी फैमिली में हिस्ट्री थी, मैं अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया और LDL might be 200, and you put them on a statin. After 4 to 6 weeks they'll get it checked and then they'll probably stop taking it. Or high intensity statin का, if you think about it, कि नंबर देख के तो लगता है कि why would somebody take high intensity statin for longer than what people would take it for the low intensity statin for. लेकिन if you think about it, तो high intensity statins are patients who are sicker. They are the ones who have had an event. वो थोड़े डरे हुए होते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन वाले तो बिल्कुल खुले कर रहे होते हैं कि कुछ होगी तो देखी जाएगी. तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में फिर भी we get patients to take medicine a bit more consistently. लेकिन what it shows is कि half of them would leave it before 2 years finish. So nothing that we need to be proud of. ये डविंची स्टडी है, ये बेसिकली एक रेट्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है, और मेनली कंसिस्टिंग ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन. और उसके अंदर व्हाट दे सॉ वाज के पेशेंट्स हु वर गिवन statins and they took it, even then 30% patients reached their LDL target with high intensity statin, and only 22% reached it in the primary prevention group. And we also know as soon as the side effects start to come, like muscle aches and stuff, these patients are very likely to stop taking it. Then there's another similar study, Santorini. This is mainly Greek population. What they saw was when you put, or a physician puts somebody on lipid lowering therapy, we know that with the new targets, पहले LDL का नॉर्मल 100 समझते थे, फिर we brought it to, बल्कि उससे भी पहले 130 was norm. कुछ लैब की रिपोर्ट्स में तो अभी तक 130 छपा हुआ आता है एज नॉर्मल. देन वी रिड्यूस इट टू 100, देन 70, और अब तो 55 इज द न्यू टारगेट दैट वी ऑल एम फॉर. यूरोपियन सोसाइटी की तो गाइडलाइंस बदल गई हैं, अमेरिकन विल प्रॉब्ली फॉलो. लेकिन व्हाट वी नो इज के पेशेंट्स की जो फिजिशियंस हैं हमारे, दे आर नॉट अवेयर of these add-on therapies that can be given to these patients who are not achieving their targets with the standard statin alone. We can combine ezetimibe, we can give them PCSK9 inhibitors, and then we have other oral lipid lowering therapies, niacin हो गई और bempedoic acid हो गया. So very small part of the population ends up on them, despite the fact that only 21% reach their targets in that particular study. What they found was that combination therapy has fared much better than single statin alone. And if you combine that with ezetimibe or PCSK9 inhibitors, there is a high likelihood that these patients would reach their targets. What are the novel add-on therapies, or not novel, the add-on therapies? So ezetimibe we have had for a while, or मेरे ख्याल है a lot of companies have invested a lot of money in it, or people are a lot more aware of ezetimibe than we were maybe a few years ago. Bempedoic acid is again becoming a favorite in Pakistan. And then we have all these PCSK9 inhibitors that are in the, only one of them is available in Pakistan, that's in Glycerin. Question whether why do we need to be on high intensity statins or these add-on therapies. We know that the
it's not just lowering your LDL, it's also the number of LDL years or high lipid years that count. यानी जिस तरह हम smoking में we count the number of years that the patient has been smoking for, we also for LDL as well, we count the number of years that patient has been exposed to high LDL levels, and that increases their risk of future cardiac events. ये स्वीट हार्ट स्टडी है which was done for something else, लेकिन what we know from it is कि सो ये इसके अंदर ये सब ग्रुप एनालिसिस इन्होंने किया है, 3 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया है. वो लोग जिन्होंने जिसको हम जिस तरह देते हैं, पेशेंट आया स्टेमी के साथ, हमने रात को 80 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन या 40 रोजुवास्टैटिन दे दी. सो दीज आर द पेशेंट्स who lowered their LDL level rapidly, and these were the ones who have been classified as patients who reduce their LDL rapidly. Second group is the one where late का मतलब है 2 months, कि after 2 months उनका LDL चेक किया और वो शुरू में अपने LDL के टारगेट पे नहीं थे, and after 2 months they reached the LDL target. और फिर thirdly वो लोग जो who fared the best were the patients who reached their LDL target early, and also they maintained that LDL level after 2 months as well. यानी इसका मतलब है कि इसमें आपकी compliance भी चाहिए मेडिसिन की. शुरू में भी उसने हाई इंटेंसिटी स्टैटिन ली, एंड दे कंटिन्यूड इट फॉर 2 months or after that, and what they saw was कि this correlated directly with their subsequent cardiac events. सिर्फ अर्ली अगर करते कि जी हमने शुरू में कोलेस्ट्रॉल का नीचे कर लिया, बट दे वर नॉट टेकिंग इट आफ्टर 2 months, दे आर स्टिल बेटर देन पेशेंट हु डिड नॉट रिसीव एनी स्टैटिन. लेकिन आउट ऑफ द 3 groups they fared the worst, and the best ones are who reach their target early and also are able to maintain it. यानी compliance भी उनकी बेहतर है, या they could be put on something which does not need compliance and which can lower their cholesterol for longer. Again, multiple pathways हैं, depending on which guidelines you take. They tell you कि पहले आप statin पे ही डालते हैं, which is standard. High dose statin is to start off, and then depending on what level of what cholesterol you are achieving, अगर आपका more than 70 है, you add ezetimibe. अगर फिर भी you are not reaching your target, ये 70 again, these slides are from a couple of years ago. These are the patients who were put on these trials. Like up to 55 is the number you are looking for. So how did we end up getting to this number of 55? We know कि 1980s, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कि अभी भी बहुत सी लैब्स हैं. इनफैक्ट एक बहुत फेमस लैब है इस्लामाबाद के नाम के साथ ही जुड़ी हुई, जो उनके पेपर पे अभी भी 130 नॉर्मल आता है, और पेशेंट को सबसे मुश्किल है कन्विंस करना कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल 55 होना चाहिए. वो कहता है जी यहाँ तो 130 छपा हुआ है. तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि दिस इज समथिंग दैट वी एम फॉर इन 1988, और वही अभी तक प्रिंट होके आता है. देन subsequently in early 2000 we moved down to 70, and we saw for all this the amount of LDL that you lower from the baseline, you get reduction in cardiac events. And now with the new trials, the Clear Outcomes and Odyssey, we have come down to this 55 as the new LDL golden number that we are aiming for. And we don't know future mein, if we get drugs with lesser side effects, this number might even get lower. But right now this is what it is. Why we are discussing this? That we all know how statins work. ये जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए मैं 3 ड्रग्स हैं जो मेनली यूज़ होती हैं. एक statins है. What do statins do? ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल का बिल्डिंग, ये जो अगर आप बायोकेमिकल उसका पैथवे देखें, तो सेकेंड लेवल ऑफ सबस्ट्रेट से जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है मिथाइल मेलानोइक कोलिक एसिड पे, दैट्स वेयर इट इंटरप्ट्स LDL प्रोडक्शन. यानी बेसिकली ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. एक स्टैटिन का मैकेनिज्म है, एक एजिटिमाइब का मैकेनिज्म है, एंड देन देयर इज दिस मैकेनिज्म ऑफ PCSK9. स्टैटिन क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन लाइन में ही कट ऑफ कर देते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती. जब भी आप बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन रोकते हैं, बॉडी ट्राइज टू काउंटर इट विद अदर मैकेनिज्म. एज सून एज यू पुट समबडी ऑन स्टैटिन, उसकी LDL प्रोडक्शन नीचे जाती है, बॉडी फील्स द नीड फॉर हायर LDL, एंड देन बॉडी स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग मोर कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द गट. और गट के ऊपर जो ब्लॉक करती है वो एजिटिमाइब है, विच प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द गट. तो इसलिए when you combine ezetimibe with statin, you are basically cutting off 2 different mechanisms. Bempedoic acid है, वो
ये सेकंड स्टेप पे एलडीएल प्रोडक्शन रोकती है, वो फर्स्ट स्टेप पे ही रोक देता है। तो तो इसलिए दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू स्टैटिन। और थर्ड नंबर पे हमारे PCSK9 इनहिबिटर्स हैं। वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंक्लिसिन, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया, इसलिए क्योंकि अवेलेबल ही है, तो बाकियों को समझने की ज़रूरत नहीं। तो होता क्या, ये जो अब कोलेस्ट्रॉल आपने स्टैटिन दी, उसने प्रोडक्शन रोक दी, आपने जिटिमाइब दी, उसने एब्जॉर्प्शन रोक दी, इसके बावजूद बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, दीज आर द पेशेंट्स फॉर विच इंक्लिसरैन इज इंडिकेटेड राइट नाउ। हमें पता है फ्यूचर में वी माइट गेट अदर इंडिकेशंस। तो ये क्या करता है, जितना भी आपके ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फिर रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने का काम इज डन बाय एलडीएल रिसेप्टर जो लिवर पे हैं। ये लिवर की सरफेस पे आते हैं, एक एलडीएल मॉलिक्यूल से एक रिसेप्टर कंबाइन करता है। दैट रिसेप्टर्स जॉब इज टू ब्रिंग दैट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिवर इनटू द सेल हेपेटिक सेल्स। वो हेपेटिक सेल्स के अंदर लाता है, वहां पे वो डिग्रेड कर देता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। Every time this LDL receptor moves from the surface of hepatocytes inside, it gets exposed to a degrading enzyme जो PCSK9 है। जितनी दफ़ा वो एक्सपोज होगा इस एंजाइम को, उतनी जल्दी वो डिग्रेड होता जाएगा वो एलडीएल रिसेप्टर। यानी एलडीएल रिसेप्टर नॉर्मल लाइफ उसकी, अगर हर दफ़ा वो एक्सपोज हो रहा है PCSK9, तो मे बी 100 साइकिल्स हों, 100 मॉलिक्यूल्स को ऊपर से नीचे लाता है, हर दफ़ा जब वो नीचे सेल में आता है, it gets exposed to this degrading enzyme. So what PCSK9 inhibitors do by different mechanisms, बाकी जो दो आए हैं मार्केट में उनका और मैकेनिज्म है, what this particular molecule does is कि वो PCSK9 रिसेप्टर की जो जीन है, इनहिबिटर की जीन है, उसकी प्रोडक्शन रोक देते हैं बाय कंबाइनिंग इन आरएनए, और आरएनए में जहाँ से उसकी प्रोडक्शन होनी है दे वुड स्टॉप इट्स प्रोडक्शन। यानी एक एलडीएल रिसेप्टर जो नॉर्मली उसने 100 दफ़ा मॉलिक्यूल अंदर लाना था, 100 मॉलिक्यूल्स एलडीएल के इंजेस्ट करने थे, वो 150 कर लेगा। सेकेंडली, एलडीएल रिसेप्टर अपनी स्पीड से बन भी रहे हैं, ज़ाहिर है बॉडी जब डिग्रेड होती है चीज़ तो बॉडी उसको बना भी रही है। तो अगर वैसे एक नॉर्मल बंदे में 100 रिसेप्टर्स होने थे और नॉर्मल लाइफ साइकिल में वो 100 जब तक डिग्रेड होते हैं 100 और बन जाते हैं। अब ये डिग्रेड स्लो हो रहे हैं तो प्रोडक्शन उतनी चल रही है, तो बजाय 100 रिसेप्टर्स होने के अब मे बी 150 हो जाएंगे उसके ऊपर। दैट्स हाउ इट विल डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल। और अच्छा फायदा इज के दिस सॉर्ट ऑफ इज इफेक्टिव फॉर अप टू 6 मंथ्स। और ये डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। अभी जो जिन चीज़ों पे आगे काम हो रहा है वो तो ये कि वैक्सीनेशन, वी माइट गेट अ वैक्सीन which has to be just taken once a year, and then there are mechanisms by gene editing. If you put those genes in, one injection might be enough for lifetime. So these are things in pipeline. What we have right now is something biannual, which is the siRNA, the inclisiran molecule that has to be given every 6 months. डिफरेंट और भी टारगेट रिसेप्टर पे वो काम कर रहे हैं। ये हमने अभी समझा दिया कि वो करता क्या है। जिस तरह हेपेटोसाइट के अंदर आते हैं एलडीएल रिसेप्टर, उसकी डिग्रेडेशन वो रोक रहा है। हाउ डू वी गिव इट? 0.0 पे आप एक इंजेक्शन देते हैं, इट्स अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, देन यू गिव इट आफ्टर 3 months एंड देन यू गिव इट आफ्टर एवरी 6 months. इसका फ़ायदा क्या है हमें? एज आई सेड कि द मोर एलडीएल a patient is exposed to during the course of his lifetime, उसके चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स आर हायर। जितना आप एलडीएल की बॉडी में प्रोडक्शन या एक्सपोजर कम करते जाएंगे, वी नो कि वो कार्डियक इवेंट्स रोकता है। और ये बार बार हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि PCSK9 इनहिबिटर्स के किसी भी PCSK9 इनहिबिटर का भी इतना लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है कि इट हैज शोन एनी मोर्टेलिटी बेनिफिट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट इज के जो अदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग थेरेपीज थी जिसमें मेनली स्टैटिन है, जब उसने इतनी एलडीएल नीचे की, उतनी स्पेसिफिक एलडीएल, उसके साथ मोर्टेलिटी इंप्रूव हो गई। तो वी आर एक्सट्रापोलेटिंग कि ये जो ड्रग्स हैं जो अभी नहीं है मार्केट में, इनके ट्रायल्स हो रहे हैं और IN 93 112 पे चले गए। इनके पहले वाले ट्रायल 8 9 10 थे। तो ये दीज आर ऑल लुकिंग एट लॉन्ग टर्म डेटा, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म विल टेक लॉन्ग टर्म टू कम आउट। हाँ, वो तो उसको फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। How much do these drugs bring the LDL cholesterol down by? So roughly around 50%. ये different subsets हैं ये। If you look at them, Orion 9, Orion 10, Orion 11, और अब तो 90s में भी पहुंच गए हैं। तो what we have seen in all of them, ये इनके फ़र्क क्या है इनमें? It's just the patient population which is different. Orion 9 was patients with heterozygous familial hyperlipidemia. Orion 10 was patients who have had an event, atherosclerotic cardiovascular disease.
और फिर ओराइन 11 आर द पेशेंट्स जिनकी या कोई इवेंट हो चुका है या उनके रिस्क इक्विवेलेंस हैं। रिस्क इक्विवेलेंस एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज के क्या है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है एंड हाइपरटेंशन। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कॉज वाज, यू गेट अराउंड 50% एलडीएल रिडक्शन विद दीज। इसको भी छोड़ देते हैं। और ये रियल वर्ल्ड डेटा है कुछ कंट्रीज का जो अभी तक इमर्ज कर चुका है। यूके सिंगल सेंटर स्टडी शोड अराउंड 49% रिडक्शन, इटली वाज द सेम एंड सो वाज यूएस। सो वी नो इवन इन रियल लाइफ वी आर अचीविंग समथिंग विच इज 50%। और इसकी फायदा वजह इज कि इन यूएस इट्स ओनली गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड इन्फ्यूजन सेंटर्स। वो खुद ट्रैक रखते हैं, आपके 6 मंथ के बाद आपको बुलाते हैं एंड दे गिव द इंजेक्शन देमसेल्फ। तानी वो जो साल में 2 टीके भी लगाने हैं उसमें भी कंप्लायंस दे इंश्योर इट बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रग। इवन इन यूएस वहाँ पे आपको पे अच्छी खासी देते हैं। ये सारे वही डेटा हैं। देना किस तरह है, फर्स्ट डोज एट 0.0, देन सेकेंड डोज विल बी 3 months एंड आफ्टर दैट विल बी एवरी 6 months। And what we know is what people are advocating now, based on what we saw in the previous trials, it's the best strategy is where patients' LDL cholesterol is reduced early and you maintain it over the long term. And we know कि यहाँ पे normally हम ज़रा slow हैं, हम पहले एक statin देते हैं, उसके 6 हफ्ते बाद चेक करते हैं, उसके बाद statin को बढ़ाते हैं, फिर 6 हफ्ते बाद चेक की, फिर उसको शायद ezetimibe दिया, versus you put them on something that reduces their cholesterol straight away. And we have seen in these population based studies that's where the best outcomes lie. Indications क्या है, again familial या primary hypercholesterolemia है, high cardiovascular disease risk वाले हैं। और ये पेशेंट्स आपने पॉपुलेशन में ढूंढने कैसे हैं, ये वो लोग हैं जो जब आपके पास आते हैं आफ्टर एटलीस्ट 4 to 6 weeks of taking a statin and you see that their LDL is not at the target. These are the ones mainly you should be targeting with these newer therapies. और we know कि जैसे ही आप इनको नीचे लाते हैं, their 10-year cardiovascular risk and everything comes down by almost 28%. ये भी रफली ये कुछ पॉपुलेशन बेस्ड डेटा है 500,000 पेशेंट्स का। ये वो लोग थे जो ओराइन लाइक पेशेंट्स हैं। एंड व्हेन दे एक्सट्रापोलेटेड द डेटा, अगेन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक हार्ड कोर इनके अपने किसी भी ट्रायल में, किसी भी PCSK9 इनहिबिटर के ट्रायल में अभी तक लॉन्ग टर्म डेटा हमारे पास नहीं है। इसीलिए गाइडलाइंस टेल यू कि दे नीड टू बी ऑन सम डोज ऑफ स्टैटिन whatever they can tolerate, and in addition to that you put them on inclisiran. But if you extrapolate their data on these patients who have had a similar reduction in LDL किसी भी दवाई से, तो you save 31,000 cardiovascular events per 500,000 population। यानी almost more than 2/3 population में आप एक cardiovascular event prevent कर लेंगे if you put them on something that they don't need to be compliant with। Again इसका फ़ायदा क्या है, is very specific, इसके side effects are very low. Perfect, thank you.